Okay, students, see, this is your chapter number 2. Though it is your chapter number 2, but still it is coming into your module number 1. ठीक है, ये chapter number 2 जब बोलने के लिए है, but ये अभी भी हम लोगों का जो चालू है, that is module number 1. So in module number 1, we have seen the life insurance business. Now in the chapter number 2, we will go to study about the life insurance plan. So it means what? The product of LIC. So product of LIC मतलब ये कोई goods या commodity नहीं है. जब it is basically the plans, जो planning रहता है, जो policy रहता है, जो sell करते हैं, उसको कहा जाता है product करके. Okay. So what are all exactly we will going to see in this lesson? So here meaning of a product. Then again, which are all the traditional life insurance product, whole life insurance, advantages of whole life insurance. जाती ने खाती बा. ध्यान दो. हाँ. Next, endowment assurance, dividend method of profit participation, riders in life insurance plan, different life insurance riders, benefits of riders, life insurance forms and procedure, documents of life insurance policy, and then again your exercise. So it means exactly what we will going to see here in this chapter कि basically insurance plan क्या रहता है, क्या क्या प्रोडक्ट रहते हैं, कैसे कैसे पॉलिसीज रहते हैं और कैसे डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज है करके क्या उनके राइडर्स रहते हैं. That we will going to study here. Okay. So here you can see meaning of product. What exactly the meaning of product है? जब जनरली हम लोग प्रोडक्ट ये वर्ड सुनते हैं then we come to know कि नहीं ये कोई कमोडिटी वगैरह रहेगा. तो LIC के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंश्योरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोडक्ट इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट. ओके, सी, product is same as commonly the term product comes from the term reproduce, which means to bring forth or create. Products may be tangible or it can be intangible. Tangible refers to the physical object that can be directly perceived by touch, that is car and television. ये एक product हो गया. देखिए, intangible refers to what? They are the product that can only be perceived indirectly. Okay, life insurance is a product that is intangible, of which insurance agent should make to understand about the features of a particular life insurance product to the policy holder or consumer. तो जो भी LIC का ये रहता है, what product रहता है, तो उसको क्या कहा जाएगा? It will be coming into the intangible product. Intangible मतलब क्या होता है कि उसको हम लोग टच नहीं कर सकते. ठीक है, but that will going to give you benefit. It will going to have certain advantage to you. Okay, so therefore when we are taking any insurance plan, so it is called as your intangible product here. See, now we will going to study about the traditional life insurance product. देखो, ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट क्या क्या है, मतलब उसके अंदर क्या क्या चीजों का कवर किया जाता है. द फर्स्ट वन ईयर होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान, then the endowment insurance plan, and then term insurance plan here. So what exactly the meaning of all this kind of a plan that we will going to study here. See, term insurance plan मतलब क्या रहता है? आप लोगों को ये वर्ड बहुत आगे सुनने के लिए मिलेगा कि मैंने टर्म इंश्योरेंस लिया है, मैंने एंडोमेंट इंश्योरेंस लिया है. तो वो क्या रहता है उसका हम लोग अभी देखेंगे. ठीक है, सी, टर्म इंश्योरेंस प्लान मतलब क्या? इट इज वैलिड ओनली ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड that has been specified in the contract. टर्म है, टर्म मतलब क्या? एक पीरियड्स के बारे में कि ये इतना इतना टाइम तक ही रहेगा करके. therefore it is called as term insurance plan. Okay, the term can range from as short as it takes to complete an airplane trip as long as 40 years. तो उन्होंने क्या कहा है? एयरप्लेन ट्रिप मतलब बेसिकली क्या रहता है कि ये मैक्स टू मैक्स टर्म इंश्योरेंस जो रहेगा ना, वो मैक्स टू मैक्स 40 इयर्स के लिए दिया जाता है. जनरली जब तुम लोग इंश्योरेंस लोगे तो अभी तुम लोग 40 इयर्स के लिए लेने वाले हो क्या? नहीं, यू विल गोइंग टू टेक इट टिल योर रिटायरमेंट. सो इट मींस टिल द 35 है ना, 35 इयर्स का आप लोग लेके रखोगे. प्रोटेक्शन में एक्सटेंड अप टू एज ऑफ 65 और 70 ऑल्सो. 1 year term policy are quite similar to property and casualty insurance contract. All premium received under such a policy may be treated as earned toward the cost of mortality risks by the company. देखो उन्होंने क्या कहा है कि they are saying कि this kind of a product जो term insurance रहता है ये 40 years तक भी दिया जाता है. You can take it for 1 year also, you can take it for 40 years also. Okay, लेकिन यहाँ पे एक टर्म फिक्स रहेगा, इसके लिए उसको टर्म इंश्योरेंस कहा जाता है. मेन रीजन क्या है? उन्होंने कहा कि जनरली वी थिंक कि नहीं रिटायरमेंट एज तक,
बट जो तुम्हारा इंश्योरेंस रहेगा वो 65-70 एज तक भी आप लोग आगे जाके मतलब उतना एक्सटेंड कर सकते हो नेक्स्ट ईयर। सिवाय 65-70 बिकॉज इट इज माई ऑब्जर्वेशन कि गवर्नमेंट सेक्टर में दो वी आर सेइंग द रिटायरमेंट एज इज 58 या 60 रहेगा, लेकिन अगर आप लोग कॉर्पोरेट सेक्टर में रहेगा कोई ओल्ड एज पर्सन है लेकिन वो उतना फिजिकली फिट है और उसका इधर से मतलब इंटेलेक्चुअल स्किल इज वेरी गुड एंड दैट इज क्वाइट what we can say contributing to the production capacity of the particular company, तो जो डायरेक्टर पोजीशन पे रहते हैं वो लोग 65-70 एज तक भी रहते हैं। ओके, so maybe that could be the reason कि like they are earning at that age also, तो उनके ऐसे लोगों के लिए 65-70 भी टर्म इंश्योरेंस हो सकता है, मतलब वो एज तक। द नेक्स्ट ईयर कि ये जो प्रीमियम पे किया जाता है टर्म इंश्योरेंस में, इसका मीनिंग क्या होता है यहाँ पे, इट इज ट्रीटेड एज द कॉस्ट ऑफ मोर्टेलिटी रिस्क बाय द कंपनी। यहाँ पे कंपनी मतलब कौन रहेगा, जो इंश्योरर है उसको कंपनी कहा गया, जो पॉलिसी दे रहा है उसके लिए। ठीक है, जैसे मैंने मेरे लिए टर्म इंश्योरेंस निकाला है तो वो पर्टिकुलर टर्म तक मेरा मोर्टेलिटी रिस्क कितना रहेगा। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि आप लोग अगर ज्यादा एज के बाद मतलब लाइक 50 यू हैव क्रॉस और 45 एज यू हैव क्रॉस और उस टाइम पे इफ यू आर टेकिंग एन इंश्योरेंस तो क्या रहता है, तुम्हारा मोर्टेलिटी रिस्क ज्यादा रहेगा। तो जितना ज्यादा रिस्क रहेगा उसके अकॉर्डिंग प्रीमियम क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा या कम रहेगा, व्हाट यू ऑल से, ज्यादा रहेगा। ओके, सो जो भी कैलकुलेशन होएगा वो दैट विल बी ऑल डिपेंड अपॉन द योर एज एंड वी कैन से द मोर्टेलिटी रिस्क। तो एज भी नहीं, अगर कोई वहां पे किसी को कुछ बीमारी है तो उसके अकॉर्डिंग भी प्रीमियम ज्यादा रहेगा। अभी पर्पस क्या रहता है टर्म इंश्योरेंस का, a term life insurance fulfills the main and the basic idea behind the life insurance. If the life insured dies prematurely, there will be a sum of money available to take care of his or her family. This lump sum money represents the insured human life value for his loved one. A term insurance policy also comes handy as an income replacement plan also. Even ये जो term insurance को income replacement plan भी कहा जाता है। जैसे कि मैंने आपको बोला था देखो बीच में कि ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाता है। जैसे अगर अभी किसी का सैलरी 20,000 है तो वो मतलब वो सब कुछ चला गया, उससे इंश्योरेंस प्लान लिया था लेकिन वो उसका डेथ हो गया, तो टिल द रिटायरमेंट तक उसका जो 20,000 रहेगा वो अर्निंग अभी उनको आना बंद हो गया उनके फैमिली को, है ना। तो वो एज तक 20,000 मतलब कितना अमाउंट होगा उसके हिसाब से कैलकुलेशन किया जाता है। सो दैट इज कॉल्ड एज ह्यूमन लाइफ वैल्यू। तो जैसे मैंने आपको कहा कि जब आप लोग इंश्योरेंस के लिए प्लान करोगे कि मुझे खरीदना है इंश्योरेंस, तो आप लोगों को क्या अमाउंट का खरीदना चाहिए, अभी मैं कितना कमा रहा हूँ, अभी मैं मेरे फैमिली में कितना कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूँ, और उसके अकॉर्डिंग मेरा अगर मैं बीच में चला गया तो मेरा एंड तक मतलब टिल द एज ऑफ माई वर्किंग मैं कितना अमाउंट यहाँ पे उनको उस सैलरी के हिसाब से कमा के दे सकता हूँ। तो उसके हिसाब से आपका इंश्योरेंस का जो अमाउंट रहेगा, जो पॉलिसी आप खरीदते हो, तो वो अमाउंट उतना बड़ा होना चाहिए। ओके, वो बेस्ट डिसीजन रहता है ऐसा उनका कहना है। लेकिन अगर उसका प्रीमियम हमारे लिए अफोर्डेबल नहीं है देन आई शुड से लाइक वी शुड नॉट गो विद दैट पॉलिसी, थोड़ा कम अमाउंट का पॉलिसी लेकर, बिकॉज प्रीमियम भरते जाओगे घर पे खाने पीने के लिए पैसा नहीं बच रहा है, उसका कुछ मीनिंग नहीं है। Okay, see, in place of payment of a lump sum amount to the dependents on the happening of an unfortunate death during the term of the policy, a services of monthly, monthly, or similar periodical payouts for a predefined duration may be provided to the dependent beneficiary. जैसे मैंने अभी आपको कहा कि जो lump sum amount रहेगा उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा था, ठीक है, उसके बारे में वो पेमेंट कैसे देते हो। जैसे पेमेंट में मैंने आपको बोला कि हम लोगों को पॉलिसी उतना पैसे का खरीदना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर हम लोग नहीं खरीद पाए ना तो जो LIC जितना प्रॉफिट में रहेगा, LIC का जो मैंने स्कीम लिया है वो स्कीम कितना प्रॉफिट में है बाकी मतलब मार्केट में, तो उसका जो भी परसेंटेज रहेगा वो बोनस मुझे मिलेगा एडिशन। लमसम दिखाने के लिए 2 लाख दिख रहा है, चलो मुझे 2 लाख तो मिलने वाला है, लेकिन उससे ज्यादा भी तुम लोग को अमाउंट मिलता है। आपको वो पता चलेगा जब आप पॉलिसी खरीदोगे तब उसको बोनस अमाउंट ऐसे कुछ कहा जाता है। ओके, देन द डिसेबिलिटी, हम लोग अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट द टर्म इंश्योरेंस। डिसेबिलिटी, normally a term insurance policy covers only a death, however
when it is purchased with a disability protection, with a disability protection rider on the main policy, and if someone were to suffer such a catastrophe during the period of a term insurance, the insurance company will provide a payout to the beneficiary. If the insured dies after the term ends, there are no benefits available as the deal is over as soon as the term expires. ओके, सो यहाँ पे डिसेबिलिटी मतलब क्या है मेन कि सपोज अगर कुछ आप लोगों ने डेथ के बारे में वहां पे लिया रहेगा, लेकिन बेसिकली टर्म इंश्योरेंस इसके लाइफ के बारे में ही रहता है, तो वहां पे अगर कुछ डिसेबिलिटी होता है बिकॉज ऑफ द एक्सीडेंट एंड ऑल, तो वहां पे भी आपको वो अमाउंट मिलेगा, लेकिन वो टर्म पीरियड रहेगा, जैसे कि मेरा टर्म खत्म हो रहा है 28 फरवरी को, ओके, और जो इंसिडेंट है वो 28, वहां पे इवन टाइमिंग भी लिखा रहता है, जब आप लोग पॉलिसी खरीदते हो ना, तो ये डेट पे कौन से टाइम तक ये चलेगा वैसा भी लिखा रहता है। तो सपोज 28 फरवरी दोपहर का 12 बजे तक का वो टाइम रहेगा, फिर तब तक ये पॉलिसी मेरा कंटिन्यू है, मतलब मैं इंश्योर हूँ तब तक। 28 फरवरी है, 12:05 हुआ है, तभी कुछ इंसिडेंट हुआ है, यू विल नॉट बी कवर इन दैट पॉलिसी। आर यू गेटिंग मी? तो टर्म इंश्योरेंस का यही ड्रॉबैक है कि एक बार टर्म खत्म हो गया और उसके बाद में कुछ हो जाता है इंसिडेंट, इमीडिएटली उसके बाद में कुछ इंसिडेंट हो जाता है, यू आर नॉट एलिजिबल टू क्लेम फॉर दैट लंप सम अमाउंट। आर यू गेटिंग मी? देखो नेक्स्ट है टर्म इंश्योरेंस एज अ राइडर। प्रोटेक्शन अंडर टर्म लाइफ इज यूजुअली प्रोवाइडेड as a standalone policy, but it could also be provided through a rider in a policy. For example, a pension plan may contain provision for a death benefits to be payable in case one dies before the date when the pension is to start. ये भी बराबर। देखो यहाँ पे क्या है, टर्म इंश्योरेंस एज अ राइडर मतलब वो कंटिन्यू रहेगा। किन चीजों के लिए कंटिन्यू रहेगा कि जैसे उन्होंने कहा है कि जैसे मैंने मेरे ऊपर वो स्कीम लिया हुआ है और मैंने वहां पे नॉमिनी भी किसी को रखा है, ठीक है, कि मेरे बीमारी मेरे बाद में मेरे बच्चे का एक अमाउंट जाना चाहिए करके, तो वो पेंशन स्कीम का रहेगा। और क्या हो जाता है कि पेंशन मेरा चालू ही होने वाला है नेक्स्ट मंथ से, और तभी कुछ हो गया, तो जो पेंशन अमाउंट रहेगा वो किसको मिलेगा, मेरे जो नॉमिनी है उनको पेंशन अमाउंट मिलेगा। दे कैन नॉट से कि बिकॉज पेंशन कैसे रहता है कि व्हेन इट इज गोइंग ऑन, जब वो पॉलिसी चलता है तभी हम लोग को पेंशन नहीं मिलता है, उसका टर्म खत्म हो गया, उतना प्रीमियम भर के हो गया, मैच्योरिटी हो गया, उसके बाद में आपका पेंशन अमाउंट स्टार्ट होगा, ओके, टिल योर डेथ। तो यहाँ पे मेन क्या है कि मैंने तो पैसा वहां पे ऑलरेडी भरा हुआ है और वो पैसा आने से पहले ही, मतलब पेंशन चालू होने से पहले ही कुछ हो गया, तो वो जो पैसा रहेगा वो वहां पे मेरे बच्चे को मिलेगा। कब तक मिलेगा, नहीं लमसम मिलेगा, जो पैसा मैंने डिपॉजिट किया दैट मनी आल्सो ही विल गेट, और उसके बाद में थोड़ा एडिशनली भी वो लोग दे देंगे, बोनस जैसे मैं बोलती हूँ वैसे, ठीक है। लेकिन ये आपको पूछ के रखना पड़ेगा, एजेंट जो रहेगा उसको पूछना, मतलब जब पेंशन स्कीम लेने वाले उस टाइम पे से पूछ के रहने का कैसा मिलने वाला है क्या, अदरवाइज कोई कोई जगह पे नहीं देते वो लोग, तो थोड़ा एकदम क्लियर रहने का, ठीक है। नेक्स्ट है टर्म इंश्योरेंस में रिन्यूएबिलिटी, रिन्यू करना है। सी द प्रीमियम आर जनरली चार्ज एट अ फाइनल एनुअल रेट फॉर द होल ड्यूरेशन ऑफ टर्म इंश्योरेंस। Some plans have an option to renew at the end of the term duration. However, in this product, the premium will be recalculated based on one's age and health at the stage and also the new term for which the policy is being renewed. मतलब जैसे कि मेरा अभी सपोज एज चालू है 37 इज रनिंग, ओके, तो मैंने एक पॉलिसी लिया है टिल द एज ऑफ 40, फाइन, तो अभी मैं लेस देन 40 में हूँ, तो लेस देन 40 में हूँ करके मेरा मोर्टेलिटी रिस्क क्या रहेगा, थोड़ा कम रहेगा, बट व्हेन आई एम क्रॉसिंग माय एज ऑफ 40 और मैं तभी उसको रिन्यू करने जा रही हूँ, तो मेरा प्रीमियम क्या रहेगा, थोड़ा बढ़ेगा, भले ही मैंने वो पॉलिसी को कंटिन्यू किया हुआ है, मैंने उसको रिन्यू किया वही सेम पॉलिसी को, बट स्टिल अभी क्या हो रहा है, एज आई एम क्रॉसिंग द एज ऑफ 40, मतलब मेरा मोर्टेलिटी रिस्क अभी थोड़ा बढ़ गया कंपेयर विद द प्रीवियस वन, तो वहां पे मेरा प्रीमियम भी बढ़ेगा। Is it clear to you? Yes. Next one here, convertibility. See, convertible term insurance policies allow a policy holder to change or convert a term insurance policy
into a permanent plan like whole life without providing fresh evidence of insurability. ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, मैं टर्म मतलब जो टर्म इंश्योरेंस एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए ही है, तो अभी मैं क्या कर सकती हूँ, वो टर्म इंश्योरेंस को मुझे लगता है कि नहीं मैं बार बार क्या ये रिन्यू करते बैठू, मुझे वो नहीं करना है, तो फिर मैं क्या करूंगी, उसको परमानेंट कर सकती हूँ। तो जब वो परमानेंट होगा तो वो किसके अंदर आ जाएगा, होल लाइफ इंश्योरेंस में आ जाएगा। अभी तक मैं किसके अंदर थी, टर्म इंश्योरेंस में थी, जब मैंने इसको परमानेंट किया तो वो होल लाइफ में चला गया। तो उस टाइप का कन्वर्टेबल यहाँ पे पॉसिबल होता है, टर्म इंश्योरेंस का हम लोग अलग इंश्योरेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, so this privilege help those who wish to have a permanent cash value insurance but are temporarily unable to afford its high premium. When the term policy is converted into the permanent insurance, the new premium rate would be higher. मतलब टर्म इंश्योरेंस को जब मैं परमानेंट में करती हूँ, होल लाइफ में करती हूँ, तो मेरा प्रीमियम और बढ़ जाता है। लेकिन फिर ये किसके लिए बेनिफिशियल रहेगा, जैसे कि स्टार्टिंग में इनिशियली मेरा सैलरी इतना कुछ अच्छा नहीं है और मुझे उतना ज्यादा प्रीमियम भरना पॉसिबल नहीं, तो मैं सोचती हूँ कि नहीं चलो मैं टर्म इंश्योरेंस ही ले लूँ करके। तो टर्म इंश्योरेंस जब मैंने लिया तो उसी टाइम पे कुछ सालों के बाद मुझे ऐसा हो रहा है कि नहीं मेरा सैलरी बढ़ रहा है, नाउ आई एम हैविंग क्वाइट अफोर्डेबिलिटी टू पे द हायर प्रीमियम आल्सो, तो उस टाइम पे मैं उसको टर्म इंश्योरेंस को होल लाइफ में कन्वर्ट कर सकती हूँ, ये बेनिफिट मिलता है। समझ में आ रहा है ना कैसे किसके लिए वो बेनिफिशियल है करके। नाउ द नेक्स्ट वन ईयर यूएसपी से द यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, the unique selling proposition of term assurance is its low price, enabling one to buy relatively large amount of the life insurance on limited budget. It thus makes a good plan for the main income earner who wishes to protect his or her loved ones from financial insecurity in case of premature death and who has a limited budget for making insurance premium payment. देखो यूएसपी यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, मतलब यहाँ पे क्या है कि जो टर्म इंश्योरेंस लेते हैं हम लोग एक पर्टिकुलर ईयर तक मैं खुद को इंश्योर करती हूँ, तो वहां पे ऑब्वियसली मैंने जैसे कहा कि टर्म इंश्योरेंस में आपको थोड़ा प्रीमियम कम रहेगा, होल लाइफ में आपको प्रीमियम बढ़ेगा। ठीक है, तो ये किन के लिए बेस्ट है कि जिनको ऐसा लगता है कि नहीं पता नहीं मैं जो जैसे बेसिकली वी विल टेक एग्जांपल ऑफ डिलीवरी बॉयज, डिलीवरी बॉयज को वहां पे एक पर्टिकुलर टारगेट रहता है, उनको बहुत ज्यादा वेट कैरी करके बाइक पे वो लोग जाते हैं, सो देर आर हाईली चांस। और अभी अगर आप लोगों ने कभी नोट किया रहेगा हाईवे पे वगैरह, तो अगर तुम लोग वहाँ पे इवन रिक्शा से भी ट्रैवलिंग करते रहोगे तो भी आपको डर लगेगा, बिकॉज इवन रिक्शा वाला भी बहुत फास्ट चलाता है। लिटरली ऐसा आता है कि अभी वो ऐसा लगता है कि अभी वो ठोकेगा, अभी किसी का एक्सीडेंट होने वाला है, इमीडिएटली ब्रेक लगा देते हैं। मतलब उनका उतना कंट्रोल रहता है, बट स्टिल वो हम लोगों को ऐसा डर लगा रहे, बिकॉज आई एम टेलिंग यू माई एक्सपीरियंस, कैसा लगता है अभी अभी ये किसी को उड़ाने वाला है, अभी उड़ाएगा, ऐसा लिटरली फीलिंग होता है। लेकिन फिर वो बराबर से इसको कंट्रोल कर लेता है। ओके, तो ऐसी जगह पे ऐसे हाईवेज पे ये डिलीवरीज बॉय भी ड्राइव करते हैं। सो जस्ट इमेजिन करो देयर आर चांसेस दे मे गोइंग टू गेट इनका एक्सीडेंट, तो उन्होंने सोचा कि नहीं अभी मुझे जैसे तुम लोगों जैसे कि योर एज बेसिकली, तो ये लोग थोड़े यंग है, उनको बाइक चलाना पसंद है करके, और कुछ घर पे हेल्प करना है फाइनेंशियली, तो ये ऐसे एज में वो लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं। ओके, तो अभी उनका तो कोई फिक्स इनकम नहीं है, दे आर टेकिंग द एजुकेशन ऑल्सो, साइड बाय साइड वो लोग जॉब भी कर रहे हैं, तो छोटा मोटा ही इनकम अवेलेबल है उनके पास, तो अभी वो लोग ज्यादा प्रीमियम भर पाते हैं क्या, नहीं प्रीमियम भरेंगे, बट स्टिल दे फील कि मुझे खुद को इंश्योर करके रखना चाहिए, तो वो लोग के लिए टर्म इंश्योरेंस विल बी बेनिफिशियल। कि टर्म इंश्योरेंस में ये मैं 1 साल के लिए ये डिलीवरी बॉयज का काम करने वाला हूँ, मैं तब तक खुद को इंश्योर करके रखता हूँ। ओके, तो मैं उतना इतना छोटा प्रीमियम है वो मैं भर सकूंगा। आर यू गेटिंग मी? सो यूएसपी मतलब यही उसका यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन है कि कम अमाउंट के लिए कम पीरियड के लिए यू कैन इंश्योर योरसेल्फ। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन ईयर वेरिएंट, ये कोई अपना कोरोना का वेरिएंट नहीं है। ठीक है, सी व्हाट आर द वेरिएंट्स हियर? A number of variants of term assurance are possible. First one here, decreasing term assurance. This plan provides a death benefits that decrease in amount with term of coverage. A 10 years decreasing term policy may thus offer the benefit of 1 lakh for death in the 4th year, with the amount decreasing by rupees 10,000 and each policy anniversary. To finally
come to zero at the end of the 10th year, the premium payable each year, however, remains the level. देखो उन्होंने क्या कहा है, बेनिफिट के बारे में कहा है कि जैसे डिक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस अश्योरेंस मतलब क्या होता है कि जैसे तुम लोगों का टर्म बढ़ता जाएगा उसके अकॉर्डिंग जो लम्प सम बेनिफिट है ना वो एक्चुअली कम हो गए, बट आई रियली फील कि ऐसा नहीं करना चाहिए उन्होंने, ये गलत है एक्चुअली, बिकॉज दे आर गेटिंग लॉट ऑफ प्रीमियम फ्रॉम अस। तो अगर टर्म बढ़ रहा है तो उन्होंने उल्टा वो बेनिफिट बढ़ाना चाहिए, बट व्हाट दे आर सेइंग, a 10 year decreasing term policy may thus offer a benefit of rupees 1 lakh for a death in the 4th year. ये एक्चुअली मतलब आई फील कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, वो कम नहीं होना चाहिए, इट शुड बी द इंक्रीजिंग वन। उन्होंने कहा कि जैसे हर एक साल होता जाएगा वैसे 10-10 हजार का बेनिफिट कम होता जाएगा, तो ये तो गलत है ना एक्चुअली, फिर क्या बेनिफिट है। हाँ प्रीमियम प्रीमियम तो वो लोग तो लेते रहेंगे ना, तो बेनिफिट तो बढ़ना चाहिए। इसको मॉर्गेज रिडेम्पशन एंड क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस करके कहा गया है। हाँ नहीं वो पेमेंट ज्यादा रहेगा मतलब नहीं समझा। हाँ मैं वही बोल रही हूँ। नहीं नहीं बट अच्छा हाँ मे बी एज कैलकुलेशन के हिसाब से वो लोग कम करते रहेगा क्या फिर, बिकॉज जो लमसम अमाउंट रहेगा जो प्रीमियम रहेगा दैट विल बी ऑल डिपेंड अपॉन द मोर्टेलिटी रिस्क। तो जैसे मैंने अभी लिया है टर्म इंश्योरेंस और मैं उसको 10 साल तक कंटिन्यू कर रही हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि जैसे मैंने अभी लिया तो 1 साल के लिए जैसे कि 4th ईयर में 4 साल अगर कंटिन्यू करे तो मुझे 4th ईयर में वहां पे बेनिफिट मिलेगा 1 लाख का, और जैसा 5th ईयर रहेगा तो और उसके अंदर 10,000 कम हो जाएगा, मतलब यहाँ पे मोर्टेलिटी रिस्क बढ़ जाता है करके वो कम हो जाता है, दैट कुड बी द मीनिंग, बट प्रीमियम दे आर गेटिंग ना, दे आर गेटिंग मनी फ्रॉम अस। वही 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 बता रहे वो लोग कि डिक्रीजिंग टर्म अश्योरेंस है करके, तो वो तो गलत है। ओके नेक्स्ट ईयर mortgage redemption. See, it is a plan of decreasing term assurance designed to provide a death amount that corresponding to the decreasing amount owed on mortgage loan. Okay, EMI, that is equated monthly installment payment, leads to a reduction of the outstanding principal amount. The insurance may be arranged such that the amount of death benefits at any given time equals the balance of principal owed. The term of the policy correspond to the length of the mortgage. The renewal premiums are generally level throughout the term. Purchase of mortgage redemption is often a condition of the mortgage loan year. What do you mean by the mortgage? Mortgage करना मतलब क्या होता है? हाँ गिरवी रखना करके, ठीक है, बट एज दे आर सेइंग हियर कि हम लोग लाइफ इंश्योरेंस में मॉर्गेज करते, तो क्या मॉर्गेज करते रहेंगे वो लोग? लोन को मॉर्गेज करना मतलब क्या रहता है, मॉर्गेज लोन मतलब क्या रहेगा, बोलो, मॉर्गेज लोन मतलब क्या रहेगा यहाँ? हाँ गिरवी रखेंगे, जैसे सी हाउसिंग लोन के लिए आई कैन टेल यू, हाउसिंग लोन में जो घर मैंने खरीदा है वो उनके पास वो गिरवी है मेरा, दैट आई कैन से, बट व्हाट अबाउट द लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस के लिए यहाँ पे क्या मॉर्गेज रहेगा? प्रीमियम तो पे करना ही पड़ेगा ना उधर। हाँ देखो हम लोग ईएमआई भरते हैं, तो ईएमआई भरते भरते जो अपना आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल अमाउंट है वो कम होता है, दैट अंडरस्टूड। हाँ दैट डिक्रीज है। उन्होंने क्या कहा है, द इंश्योरेंस में बी अरेंज सच दैट द अमाउंट ऑफ डेथ बेनिफिट्स एट एनी गिवन टाइम इक्वल्स द बैलेंस ऑफ प्रिंसिपल ओन। अच्छा
मतलब बैलेंस ऑफ प्रिंसिपल, लेकिन अगर मैं वहां पे ईएमआई ज्यादा पे कर दिया और मेरा वहां पे प्रिंसिपल कम बचा रहेगा तो मुझे फिर कम ही बेनिफिट मिलने वाला है। अच्छा, मतलब जल्दी तो इंसिडेंट होना चाहिए, ऐसे तो हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करेंगे तो वो ज्यादा पैसा मिले करके। दिस इज क्वाइट कंफ्यूजिंग। मॉर्गेज रिडम्पशन में ठीक से इसका एक है ना प्रॉपर एग्जांपल में लेके आती हूँ कल के दिन। मॉर्गेज रिडम्पशन मतलब क्या रहेगा, मॉर्गेज लोन क्या रहता है टर्म इंश्योरेंस में। इवन तुम लोग भी सर्च करो गूगल पे इसके बारे में कि क्या रहेगा, एक एग्जांपल के फॉर्म में। ओके स्टूडेंट, इवन ऑनलाइन स्टूडेंट कैन डू दैट। नेक्स्ट ईयर, क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस। It is a type of term insurance plan designed to pay the balance due on a loan. If the borrower dies before the loan is repaid, like mortgage redemption, it is usually decreasing term assurance. It is more popularly sold to finding institution as a group insurance. अच्छा ओके, सी यहाँ पे मतलब उन्होंने कहा कि क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस मतलब क्या होता है। यस बी क्वाइट, कि जैसे अगर मैंने कुछ लोन लिया रहेगा, सपोज अगर मैंने कुछ लोन जैसे हाउसिंग लोन, लेकिन फिर से मेरा वही डाउट है कि लाइफ इंश्योरेंस में ये क्यों आ रहा है हाउसिंग लोन। इट शुड बी कम इनटू द अदर वन, लाइबिलिटी में आना चाहिए। आई रीड दैट। नहीं वही मतलब कैसे हो रहा है कि यहाँ पे कि जो रिमेनिंग जो अपना प्रिंसिपल अमाउंट है ना, वो लोग पे कर देते हैं, ऐसा उसका मीनिंग है। बट वो तो फिर हाउसिंग लोन में चला गया ना, तो ये लाइफ इंश्योरेंस में वो लोग क्यों कंसिडर करें। See, I'm reading this one. Let me see. See, it is a type of a term insurance plan designed to pay the balance due on a loan. If the borrower dies before the loan is repaid, like mortgage redemption, it is usually decreasing term assurance. It is more popularly sold to finding institution as a group insurance to cover the yes, Khatib. हाँ दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। हाँ वो मतलब इंश्योरेंस से ही उधर कवर अप हो जाए, वो करेक्ट है। वैसे ही बोला है ना उन्होंने। लेकिन देख ना, अगर मैं हाउसिंग लोन लिया हुआ है तो फिर मैं मतलब वो लाइबिलिटी इंश्योरेंस में चला गया ना, तो वो लोग लाइफ इंश्योरेंस में उसको नहीं कवर अप करना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। ओके, आई विल गिव यू वन एग्जांपल फॉर दिस। इफ यू आर सेइंग कि गूगल में ऐसे बोल रहे हैं कि वो लोन उधर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब वो इंश्योरेंस वाला पे करेगा। सो इट मींस व्हाट, आई विल गिव यू वन एग्जांपल कि एलआईसी इज आल्सो प्रोवाइडिंग, एलआईसी एचएफएल, दे आर आल्सो प्रोवाइडिंग लोन। ठीक है, तो वहां पे कंपलसरी रहता है, कंपलसरी इन द सेंस दे आर आस्किंग अस, मतलब एक एलआईसी ऐसा है कि जो लोग क्वेश्चन करते हैं कि आपको चाहिए क्या इंश्योरेंस प्लान। बाकी बैंक में ये कंपलसरी ही होता है कि आपको लेना ही पड़ेगा इंश्योरेंस में। ठीक है, एलआईसी का इतना मैंडेटरी नहीं रहता है। तो यहाँ पे एक मैं बोल सकती हूँ कि जैसे मैंने लोन हाउसिंग के लिए मैंने लोन एलआईसी से लिया हुआ है। ओके, मैंने वहां से लिया हुआ है और मैंने एलआईसी ने मुझे कहा है कि आपने हाउसिंग लोन तो लिया हुआ है, बट स्टिल यू टेक एन इंश्योरेंस ऑन यू। ठीक है, तो मैंने मेरे ऊपर भी इंश्योरेंस ले लिया भाई। तो वो इंश्योरेंस का प्रीमियम मैं भरती हूँ, मुझे मेरा कैसे जाएगा जब मैं वो इंश्योरेंस लेने वाली हूँ ना, तो इधर वो लोग एक ही बार मेरा पूरा प्रीमियम ले लेते हैं, या फिर मुझे टर्म के हिसाब से प्रीमियम भरना पड़ता है। टर्म के हिसाब से मतलब क्या रहेगा, 20 साल का अगर मेरा हाउसिंग लोन है तो मुझे एवरी ईयर प्रीमियम भरना है, या फिर मुझे 20 साल का प्रीमियम एक साथ पे करना है, तो बहुत बड़ा अमाउंट रहेगा। ठीक है, तो जब वो बड़ा अमाउंट रहेगा और मैंने एक साथ भर दिया है, या फिर मैंने टर्म के लिए मतलब 1 साल के लिए भरा हुआ है, और उसी 1 साल के बीच में कुछ हो जाता है, तो अभी मेरे लिए तो वो लाइबिलिटी था कि मेरा घर का लोन तो भरना बाकी है, तो मेरा वो प्रॉपर्टी चला जाएगा। तो उस टाइम पे क्या करेगा एलआईसी टर्म इंश्योरेंस के अकॉर्डिंग, वो क्या करेगा जो भी मॉर्गेज रखा हुआ था, मतलब जो मेरा घर उनके पास था,
तो मैंने वहां से इंश्योरेंस जो लिया हुआ था लाइफ इंश्योरेंस से मेरे लाइफ के ऊपर, तो वो इंश्योरेंस वाले क्या करेंगे, वो पूरा वहां पे रीपे कर देंगे, जैसे मैंने हाउसिंग लोन के बारे में बोला था। तो दैट इज अगेन कमिंग इन टू क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस ऑल्सो। हाँ, प्लस उनका इंश्योर मतलब जो प्रॉपर्टी थी वो भी मिल जाएगी। हाँ,